be finished with time because it's a long chapters and so many things to make you understand. थोड़ा ठीक है, नॉर्मल है, बट ये कि इट विल टेक टाइम. अगर हुआ, खत्म हो गया था टाइमली, देन आई शिफ्टेड टू द नेक्स्ट चैप्टर. Please start, ma'am. हाँ जी सर. Good evening, everybody. Today I'm going to start with the seventh chapter of the DNHE2, which is public and the home safety, and in which we are actually going to discuss that the safety features of the personal and the public safety features and how we can prevent ourselves from the various kind of accidents. Like we know that the feeding and nourishing of our body, keeping it clean, healthy, suitably, and well protected from the infection and the diseases, which we have discussed in other earlier chapters, and we make ensure that we have the we possess the optimum physical and the mental health and perform very well. Okay? And we think that all would be very well, and usually it is actually well, but sometimes it happens that some untoward incidents occur in our lives. So what are those untoward accidents? Like possibility of the injury to our body. Always we have a chance when we move out, we have always prone to the accidents. No, I mean, we should not think negative, but the chances are always there. Everybody should be everybody should be optimistic, and nobody can leave going outside. Okay? But everybody has to. You have to move in the morning, and you're coming back in the evening only. But as you move outside, you become more prone towards the accidents, untowards accidents. But this is not the myth. Even if you're living at the home, inside the home, we have so many consequences, bad consequences, which can happen even living within the home only. Even if you lock your house inside and bolt karo, kundi laga ke rakho, then also some things can happen. This is which we are going to discuss in this chapter actually. Suppose, first of all, we need to concern about the safety and safety of those around us, like our family, our friends in which we are living together, and about neighbors too, and others. Like these are accidents, some kind of accidents, or sometimes accidents are untoward incidences which are not actually intentional. These could be unintentional. kabhi bhi kisi bhi moment pe it can happen. But sometimes something happens with some persons deliberate untoward actions like crime. Some persons, they come intentionally to make you harm, like make you harm. I mean, in any intentions can be bad, and so many reasons behind that untoward incidents that they are committing the crime. Sometimes it's physical, sometimes it's emotional, sometimes it's psychological, sometimes it's just to make money, financial needs. The people, they actually make you harm. Okay, so these kind of accidents, although defined as unexpected, unforeseen chances, events do not cause an effect pattern and after the sequence of the events. Okay, and if somebody is alert, so I really wanted to make you aware that if you are alert at the road or outside or even at home, okay, consider home too, because untoward incidents can happen at the home too. Okay, not the accidents. Some accidents happen at home too. We are going to discuss in detail. So we should be always alert. We should not be in a half sleepy of our minds, like aadhe soye hue nahi hai. You should be always, when you are sleeping only, then you are sleeping, but when you are get up from your bed, you have to be alert. When you are working in home or going outside or working at office, or even you are taking bath in the bathroom or working in kitchen too, and if you have the smaller kids or you have the bigger kids, little bit grown up kids, every time you have to be alert. Only then, when you are sleeping, you can sleep. Otherwise, you have to be full awakened and full alert situations or condition, and you make your mind fully alert, fully awakened. Actually, otherwise, any time the untoward incidents can be happen. And otherwise, I mean, if you are alert, you can be precaution. You can take precautions at the at that very moment when, I mean, you can make yourself safe. Like अगर होने भी लगता है ना कोई, then you can take the precautions. अगर आप पूरी तरह से alert है, अगर half sleepy है, you are not
taking too much attention, you are not paying too much attention what you are doing. So उसमें क्या होएगा कि अगर होने भी लगेगा ना इंसिडेंट्स, तो आप इतने अलर्ट नहीं हो, तो फिर वो उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं आप उसको उतना अवॉइड नहीं कर पाएंगे. सो लाइक सम बट कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, लाइक साइक्लोन्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, उनके सिग्नल्स हमें नहीं मिल पाते हैं. ऑब्वियसली अर्थक्वेक्स कभी भी सिग्नल्स नहीं देते हैं दुनिया में कहीं भी. लाइक जापान में थोड़ा सा है कि फ्यू सेकंड्स बिफोर they can just judge, but in other countries they cannot, the earthquakes cannot be judged. वैसी सी चीज़ों का चलो हम नहीं कर सकते, ख्याल नहीं रख सकते, बट what happens otherwise also, बस छोटे छोटे इंसिडेंसेस हमारे आसपास होते हैं उनका ख्याल तो हमें रखना है और रखना चाहिए भी, so that you can save, you can be safe, and your जो relations हैं, your family members हैं, your kids हैं, your colleagues हैं, you can save, you can make safe them too. And then the like छोटी छोटी सी बातें हैं, जैसे सपोज मिल्क बॉयल हो जाता है. आई एम टेकिंग द एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन बुक ओनली, ठीक है. जो छोटे छोटे से एग्जांपल्स लिए हुए हैं, दे आर वेरी कॉमन. लाइक बॉयल हो रहा है एंड उबल जाएगा, गैस बंद हो गई है और आपने देखा नहीं है, दूध तो उबल के चलो रुक गया, नीचे से क्लीनिंग तो इट बिकम्स ईजियर, बट जो गैस बंद हो गई है और वो पूरी स्प्रेड हो जाती है, एंड उसके बाद कोई आके अगर थोड़ा सा भी गैस दोबारा ऑन कर देता है, एंड यू नो कि गैस सारी जगह स्प्रेड हुई हुई है, इमीडिएटली होने से कितना अनटूवर्ड, मतलब पूरी आग फैल जाती है और उसको फिर कंट्रोल करना इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है. एंड देन एक्सीडेंट्स इन पब्लिक प्लेसेस में भी होते हैं, ठीक है. पब्लिक प्लेसेस में भी हो जाते हैं, और किसी भी तरह के इस तरह के ही गैस, लाइक यू गो टू द रेस्टोरेंट्स, वहाँ भी ऐसे गैस सिलेंडर्स हैं, घर में भी गैस सिलेंडर्स हैं, और गैस को ख्याल रखना, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर ऑलवेज देयर, और जब आप ऑन करेंगे गैस खुली रह गई है, सिलेंडर्स का ख्याल रखना है, मतलब ये चीज़ें तो बहुत कॉमन है, एंड यू आर ग्रोन अप एंड आप सबको ये सब पता है. अच्छा, सेफ्टी एट होम, सबसे पहले हम होम से लेके चलते हैं. विल स्टार्ट फ्रॉम आवर होम. लाइक सेफ्टी वहाँ पे कैसे, आपके घर में क्या होता है कि यू हैव मेनली 3 मेन एज ग्रुप्स, लाइक एक तो ओल्ड लोग होते हैं, एक यंग होते हैं, और एक चिल्ड्रन होते हैं, एक अडल्ट भी यहाँ पे हैं, और ओल्ड भी हैं, ठीक है. हर कैटेगरी को एक डिफरेंट तरीके से अपना अलर्ट रहना पड़ता है. अब लेकिन जो अडल्ट हैं, थोड़े यंग लोग हैं और अडल्ट हैं इन द फैमिली पर्सन्स, दे हैव टू बी वेरी अलर्ट फॉर द ओल्ड पर्सन्स एंड फॉर द children. They have to be very concerned for their, because old persons हैं now, they are the age of the degeneration. उन्हें कुछ कई बार forgetfulness की आदत हो जाती है, जैसे किचन में गए, गैस पे चाय बना लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि गैस कम करके भूल जाते हैं, या गैस ऑन करके भूल जाएंगे, या फिर कोई चीज़ वैसे ही छोड़ आएंगे, या फिर दूध उबलना रखा और ऐसे ही छोड़ के आ गया और उबल रहा है, गैस बंद हो जाती है. आई मीन उनमें थोड़ी सी एक अलग चीज़ होती है. तो वी हैव टू बी अलर्ट फॉर दोज काइंड ऑफ अ पर्सन. लाइक वो चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, दैट्स द थिंग, दैट्स ओके, बट उनकी एक कई सारी चीज़ें विद ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे एक मैंने आपको एग्जांपल दिया फॉरगेटफुलनेस का. सो मे बी उनकी मेमोरी भी थोड़ी कई बार भूलना भी शुरू कर देते हैं, ठीक है. और दूसरा, वो इतने अलर्ट भी नहीं हो पाते हैं. दिस इज एज फैक्टर. सो हम उनको वी कैन नॉट ब्लेम देम, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. एंड चिल्ड्रन, जिनको अभी दे आर अलर्ट, बट दे आर ओवर अलर्ट एक्चुअली. Sometimes the children, अगर we left alone the children, they can cause the blunders actually. Okay, इनके बच्चों के तो मतलब you have to be very careful, because उन्हें अपने नफे नुकसान का भी पता ही नहीं है. So they can make blunders, और बड़े major serious accidents भी sometimes हो जाते हैं. Like they can cause harm to themselves, and they can cause harm to the home, entire home, and even sometimes to the neighbors too. So जो young लोग हैं वो little bit alert होते हैं, but adults हैं, उनकी responsibility becomes the most for towards the home and for the older person and the children in the house too. तो ऐसे से एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए, जैसे लाइक बर्निंग का तो बहुत इजी है कि बर्निंग बहुत इजीली हो सकती है, बिकॉज गैस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इन चीज़ों, ये हर किसी घर में ही है, ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है सब कुछ, और गैस है, सिलेंडर्स हैं, एवरीबडी इज देयर. सो अगर वहाँ पे ज़रा सा भी आप कुछ भूल जाते हैं करके, तो वो चीज़ें, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, कोई माइक्रोवेव है, उसमें कोई आपने मेटल का रख दिया यूटेंसिल, या सपोज कोई हीटर चला के भूल गए, या फिर मिक्सी चला के भूल गए, या फिर गैस पे कुछ रख के भूल गए, इग्निशन गैस स्टोव्स आ गए हैं, उन पे कुछ रख के भूल गए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उनको चला के भूल गए, कुछ जल गया, कुछ सड़ गया, कुछ उबल गया. ओके, ये सारी चीज़ें क्या है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये दे विल सेट द फायर.
आग पकड़ेंगी और आग फिर सारे घर में फैलेगी। ठीक है, ये सिंपल सा एक एग्जांपल है कि हर चीज से आग फैलेगी, सिलेंडर एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है जी, आप उन चीजों का ख्याल रखना है। एंड नो होम कैन बी मेड टोटली विदाउट फ्री, मतलब हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा घर हो जो आई I मीन जो एक्सीडेंट प्रोन ना हो, एक्सीडेंट फ्री। मतलब आप कैसे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, गैस है, इग्निशन गैसेस हैं, और इतनी सारी अप्लायंसेस आपने रखी हुई होती हैं, सो हो ही नहीं सकता कि आप कोई भी घर एक्सीडेंट फ्री बना पाए। ठीक है, आपको हमेशा, लेकिन आपको क्या है कि आप सेफ्टी प्लग्स एंड ऑल, बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस भी साथ में आ गए हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, लाइक अगर कोई आग पकड़ने लगता है तो सेफ्टी प्लग्स आजकल हैं, जो सेफ्टी कीज आ जाती हैं, वो भी हैं। बट गैस का क्या करेंगे, बट स्टिल यू हैव टू, अगर वहां तक भी कोई कनेक्शन टूट जाता है या पीछे कुछ हो जाता है, अगर कोई गिर जाता है, फिर उससे भी दिक्कत है कि आप कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का ख्याल आपको रखना है। तो एरियाज एट होम विच हैव हाई पोटेंशियल फॉर एक्सीडेंट्स। अच्छा, हम हमारे घर के आसपास ना, वी नो दैट सम एरियाज होते हैं जो एक्सीडेंट प्रोन्स होते ही होते हैं। ठीक है, हमारे घरों में भी और घरों के आसपास। सबसे पहले हम लेते हैं सबसे ज्यादा डेंजरस ओल्ड पर्सन के लिए और किड्स के लिए, तो होता ही होता है, स्मॉलर किड्स के लिए भी होता है। एंड समटाइम्स हम भी, अगर हम आई मीन वी आर नॉट वेरी अलर्ट, हम बेध्यानी से चलते हैं एंड देन स्टेयर्स पे दो स्टेयर्स ले ली, स्टेप ले लिया या फिर स्टेप आगे रख दिया, देन ऑल्सो वी कैन फॉल। स्टेयर केसेस आर द मोस्ट डेंजरस जो है, अगर हम अलर्ट नहीं है। एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन द स्टेयर केसेस फॉर द ओल्ड पर्सन एंड फॉर द किड्स टू, जो बहुत स्मॉल है उनके लिए भी। इवन थोड़े ग्रोन अप होते हैं, देन वी हैव टू होल्ड देयर हैंड्स एंड देन वी शुड से के स्टेयर्स पे चलो, फिर पकड़ के चलो, चढ़ाते वक्त और उतारते वक्त भी। ठीक है जी। एंड सबसे बड़ी बात है कि जो स्टेयर केसेस होते हैं, और उसके बाद दूसरी कौन सी चीज होती है, बाथरूम्स। क्योंकि आजकल जो घर बनते हैं थोड़े स्लिपरी होते हैं। ठीक है, स्लिपरी क्या टाइल्स हैं या नए थोड़ा सा डिजाइनिंग बनाते हैं, तो उस पर एक दूसरी बात होती है कि उस पर पानी रुका रहता है हमेशा। जब भी कोई ना क्या नेक्स्ट पर्सन जाएगा, और स्लिपरी के बाद एकदम से आई मीन बंदा अलर्ट नहीं था एंड स्लिप करके, तो बड़े मेजर एक्सीडेंट्स होने से बचते हैं। लाइक बचा सकते हैं अगर इफ यू आर अलर्ट, लाइक आपके बैक केक्स और समटाइम्स बड़े सीरियस फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टेयर केसेस मोर प्रोन है, दूसरा बाथरूम्स है, और तीसरा फिर किचन, तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, और अगर आप कंपेयर करें ना, ठीक है, तो दो चीजों में अगर स्टेयर केसेस हैं वो ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन है देन बाथरूम्स। ठीक है, किचन एक्सीडेंट प्रोन है ज्यादा देन द डाइनिंग रूम्स। ऑब्वियसली किचन में ज्यादा अप्लायंसेस हैं, गैस सिलेंडर्स हैंड ऑल। डाइनिंग रूम में अगर आप देखेंगे तो वहां बैठ के सिर्फ आपको टेबल पे खाना खाना है, वहां पे भी एक्सीडेंट हो सकता है, बट दैट्स इट लेस प्रोन देन एज कम्पेयर टू द किचन। सो हमें घर बाय जब करना है तो अपने घर की फैमिली की रिक्वायरमेंट्स, लाइक ओल्ड पर्सन्स ना हो और स्टेयर्स पास में ना हो, स्टेयर्स ज़्यादा ऊंची ना हो, और छोटे बच्चे हैं तो घर नीचे लें, और जब बनाना है तो कुछ ऐसा स्लिपरी मटेरियल ना यूज़ करें। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल हमें रखना है। सबसे पहले कि क्या हमें ख्याल रखना है, द डिज़ाइन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। ऑब्वियसली जब हम डिज़ाइन करेंगे कुछ अपने घर का और कंस्ट्रक्शन करनी है, तो हमें अपने फैमिली मेम्बर्स, ऑब्वियसली हम जब घर बनाते हैं हमें उस घर में रहना है, so that house should be according to our needs, विशेष के अकॉर्डिंगली भी ऑब्वियसली, बट नीड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश होती है हमारी की बहुत सुंदर बनाए, ये सुंदर चीज लगाएं जिससे सिर्फ लुक ब्यूटीफुल आए, बट ये है क्या है कि अगर लुक ब्यूटीफुल है और वो चीज स्लिपरी है, बाथरूम में हमने बहुत अच्छी सी टाइल लगा दी बट दैट्स अ स्लिपरी थिंग है, तो हमें उसका नुकसान है। विश के बजाय नीड की ज्यादा जरूरत है हमें ध्यान रखने की, दैट वी नीड दीज थिंग्स and our family members need these things, and we have the older persons in our house and we have a smaller kids in our house and they always can slip। ठीक है, और जो स्टेयर्स का मटेरियल लगाना है वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, या स्टेप्स का साइज, स्टेप्स की ऊंचाई, कंस्ट्रक्शन करते वक्त हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड समटाइम्स क्या है कि आप बारिश में से बाहर से आते हो और स्टेयर्स में भी आपने कुछ स्लिपरी ऐसा लगा लिया, आपके शूज बाहर से गिले, ऑब्वियसली बाहर से कभी भी रेनी सीजन है तो आप कहीं से भी गीले जूते लेके अगर चढ़ रहे हैं, इवन बुजुर्ग चढ़ रहे हैं, बच्चे हैं, देन आपके जूते एकदम से साफ नहीं है, नीचे आप मैट वैट का ख्याल रखिए, या बाहर से अंदर आते हुए, या फर्श का जो मटेरियल है उसका ख्याल रखिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको डिजाइन अपना घर जब करना है तो कंस्ट्रक्शन के टाइम आपको ख्याल रखना है। और दूसरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की और इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस की, लाइक कुछ भी ऐसा ओपन ना रह जाए, कुछ भी ऐसा नीचे ना हो, बच्चों की रीच में ना आए, और बिल्कुल सामने ना हो, या फिर ऐसा है कि पानी ना लगे उस चीजों में।
ठीक है, और फायर अलार्म्स लगवाएं और फायर एस्केपर्स लगवाएं, फायर लाइटिंग इक्विपमेंट लगवाएं और सेफ्टी प्लग्स लगवाएं अपने घरों में, सो दैट यू कैन वेरी इजीली, लाइक कुछ होने वाला है तो यू शुड हैव सम बीप, सम अलार्म्स, दैट यू कैन बिहेव एज ए अलर्ट वन, बाहर फटाफट निकल जाएं। ठीक है, सो इस तरह की चीजें आपको जब आप घर कंस्ट्रक्ट करेंगे, यू हैव टू केयर, ठीक है, have to be careful for these things, that you should opt for these things for the safety measures. You have to opt for the safety measures when you start constructing your home. और इसके पहले स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग नहीं, कंस्ट्रक्शन से पहले आपको इसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, जब आप आर्किटेक्चर से ही जब प्लान करेंगे तो ठीक है। द मटेरियल जो यूज होगा फ्लोर्स के लिए एंड ऑफ द हाउस एंड द सर्फेसेस स्टेप्स इज इम्पॉर्टेंट। वही मैंने बताया कि स्लिपरी हो, क्योंकि बाहर से भी आएंगे, अगर स्टेयर्स है नीचे हैं, देन ऑल्सो रूम्स का या जो आगे फ्रंट यार्ड है या बैक यार्ड है या पीछे से जैसे भी आते हैं, मतलब इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन योर नीड्स, कैसे आपका घर यूज हो रहा है, और जैसे भी आपका घर यूज हो रहा है उसको आप कैसे अंदर आएंगे और कैसे कौन सा मटेरियल है समटाइम्स, और ड्राइनेस का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो चीज स्लिपरी नहीं है, द विड्थ ऑफ द स्टेप्स एंड बी, जो विड्थ है वो भी, और लॉन्ग साइज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज आल्सो मेंशन्ड इन योर बुक, दैट ईच एंड एवरीथिंग आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड बच्चों से भी रेलिंग लगवानी है, ग्रिलिंग लगवानी है, ताकि ये ना हो कि स्टेयर्स हैं, बहुत ऊंची स्टेयर्स बन गई हैं और ग्रिलिंग का ख्याल नहीं है, इधर से बच्चा नीचे से ज्यादा कम फिसलेगा, इस साइड से फिसल के ग्रिलिंग के बीच में से स्पेस ज्यादा थी एंड देन इट कैन फॉल, तब तो बहुत ही मेजर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सो यू हैव टू think to minimize and these accidents at the home, and you have to take every possible precaution to minimize these kind of accidents at home. And now we'll consider this we have talked about the staircases, and next we are going to talk about bathrooms, and these, and because this is the staircases and the bathrooms, they are the major accident prone area in the home। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि फॉलिंग के दोनों में चांसेस ज्यादा होते हैं, एट द स्टेयर्स ऑल्सो, एट एंड द इन द बाथरूम टू, बिकॉज अनक्लीन है, वेट है, स्लिपरी फ्लोर्स है, और दूसरी बात इलेक्ट्रिक शॉक्स भी लग सकते हैं। ठीक है, वाटर हीटिंग डिवाइसेस से, बिकॉज विंटर्स में भी यूज, और ओल्ड पर्सन एंड किड्स को तो हमेशा हमने गर्म पानी से नहलाना होता है, और दूसरी बात है कि बिकॉज दे नीड हॉट वाटर फॉर टेकिंग बाथ, सो touching the electrical appliances like geyser or rods or whatever you use, ठीक है, and then अगर आप उसको wet hands लगाते हैं तो major dangerous accidents हो सकते हैं। So you should take the all precautions to avoid this thing। ठीक है, एंड चारकोल्स वगैरह भी जब हम अंगीठियों पे भी काम करते हैं एंड हम क्लोन सारी तरफ से क्लोज कर देते हैं, एंड दिस इज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने ऐसे इंसिडेंट्स आपने सुने होंगे कि घरों में वो बंद करके रात को अंगीठियां सो गए हैं, तो अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर द इनहेलेशन। जब हम इनहेल करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है, एंड द पर्सन दे कैन डाई व्हेन एवर दे आर स्लीपिंग टू। लेकिन इसी तरह से हमारा क्या होगा कि अब हम अगर हम पानी गर्म करते हैं, ओब्वियसली चारकोल बर्न करके करते हैं, तो वहाँ पे भी बाथरूम के आसपास भी कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले है कि कीप द बाथरूम फ्लोर्स क्लीन और ड्राई, वेट ना हो, एंड फुली ना स्क्रब्ड करो, उसका जो फ्रिक्शन आई मीन स्लिपरी ना हो, उसका सरफेस थोड़ा सा रफ हो, so that the major accidents could be, जो slippery accidents हैं, that could be avoided, because बाथरूम में क्या है कि पानी तो होगा ही होगा, और स्लिपरी होने के चांसेस हमेशा होते हैं, क्योंकि समटाइम्स अगर वो सब सपोज अगर वो स्क्रबिंग हुई है प्रॉपर, देन ऑल्सो अगर पानी थोड़ा सा खड़ा भी रह गया, तो वो जो वहां पे ग्रोथ होती है ना, दैट मेक द फ्लोर स्लिपरी, तो उसके बाद भी इवन द फ्रिक्शनल भी आपने क्रिएट की हुई है बाथरूम में, स्क्रबिंग हुई है अच्छे से, देन ऑल्सो सो जो ड्राइनेस है ना, वो हमेशा बहुत जरूरी है कि अगर नहाए हैं उसके बाद ड्राई हो, 2-3 लोग नहा लिए हैं डेली के डेली, उसका ड्राइनेस का ख्याल रखा जाए, सो दैट स्लिपरी इंसिडेंट्स कुड बी अवॉइडेड। लाइक सबसे पहले क्या है कि बकेट स्टैप्स वगैरह सबका ख्याल रखा जाए। ठीक है, तो इंजरी से बचा जा सकता है, एंड पर्टिकुलरली हेड इंजरी होती है जब हम फॉल करते हैं, और बिल्कुल भी जब हम अलर्ट नहीं होते ना, ऐसे ही अचानक गिरते हैं ना, तब बॉडी इस तरह से गिरती है कि
चोट कहीं भी बहुत ज्यादा लग सकती है, ठीक है। सो जनरली क्लोज द डोर आफ्टर यूजिंग द बाथरूम, therefore it is not easy to get I mean in case of the incapacitating accident. It is safer to ask the young children not to latch the door from the inside. मतलब जब भी छोटे बच्चे अंदर से नहाते हैं तो उनको कहा जाए कि अंदर से बोल्ड ना करें, डोंट बोल्ड फ्रॉम इनसाइड सो दैट यू कैन सी। अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि अगले बोल्ड करके इफ समबडी इज टेकिंग बाथ और समथिंग, तो फिर वो गिरते हैं एंड देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम सेफ बिकॉज वो अंदर से बोल्ड है और उसकी वजह से भी हो जाता है। सो इस तरह के मेजर है व्हेन एवर एनीबडी इज टेकिंग बाथ, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए कि सबको पता है कि नाउ ही और शी इज इन द वॉशरूम और छोटा बच्चा है तो आप बाकी लोग ना जाएं। सो इस तरह से छोटी सी चीज, छोटे छोटे से प्रिकॉशंस लेके आप लोग अवॉइड कर सकते हैं मेजर एक्सीडेंट्स एंड विद वेरी माइन्यूट प्रिकॉशंस से। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो बाथरूम में है वो बहुत है, हेयर ड्रायर्स वगैरह वहां ना रखें, ठीक है। अगर उनके ऊपर पानी लगता है और एकदम से आप उसको यूज करते हैं, समटाइम्स पता क्या है कि इतनी बिजी लाइफ होने से एवरीबडी इज इन हरी। सो कई बार वो दिमाग में कुछ ऑफिस का प्रेशर है या दूसरे का प्रेशर है, बच्चों को छोड़ना है, एग्जामिनेशन है, कोई मीटिंग प्रेशर्स है, कोई टाइम पे पहुंचने का प्रेशर है, ट्रैफिक प्रेशर है, समटाइम्स ऐसा सारा। उसी चीजों में क्या है कि आप बहुत अलर्ट, समटाइम्स अलर्ट होते हुए भी अलर्ट रह नहीं पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स। सो टाइम कंस्ट्रेंट्स क्या है कि बहुत ही कम टाइम होने की वजह से बहुत जल्दी समटाइम्स, सो ऐसी चीजों को आप हैबिचुअली बना लें। बिकॉज ड्रायर्स वगैरह तो आप रखें ही ना, क्योंकि गीजर ऑलरेडी है, उसको सूखे हाथों से टच करें और बाथरूम को हमेशा सूखा रखें। और जो बाकी अप्लायंसेस हैं उसको आप बाहर यूज करें, लाइक अपने बेडरूम में, ड्रेसिंग रूम में आप यूज कर सकते हैं या कहीं और आके जहाँ पे पानी के चांसेस एक्चुअली हेयर ड्रायर के पास ना हो, या और ऐसे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिनके पानी ना हो। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी एंड पानी इज अ बैड कॉम्बिनेशन or it can lead to very bad and untoward incidences. Okay, bath tubs वगैरह सो बिग एंड स्मॉल हैं या उसमें भी ड्रोनिंग का खर्चा होता है। मतलब अगर आप बाथ टब्स ना भी लगवाएं अगर बच्चे छोटे हैं तो, या फिर उनको अवॉइड किया जाए कि वो बाथ टब में ना नहाएं, बिकॉज जब पानी ज्यादा डिप हो जाएगा, बच्चा बहुत छोटा है, देन ऑल्सो द ड्रोनिंग इंसिडेंट्स, आई मीन आई डोंट वांट टू say these words, but it's like it can happen, always it can happen and you can avoid these things. और किचन में क्या है कि अगर हाँ वो बात अब की बात की बच्चे के धोने के चांसेस है, लेकिन स्लिपरी के चांसेस बड़ों के लिए भी हो जाते हैं, ठीक है। बाथटब्स की भी फिर क्लीनिंग होनी चाहिए अगर बाथरूम में बाथटब लगा हुआ है तो, ठीक है। एंड देन किचन्स में क्या, अब नाउ वी आर कमिंग टू किचन्स, लाइक 6 years से जो अंडर के बच्चे हैं, आपकी बुक में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है दैट दे शुड नॉट बी अलाउड टू गो एंटर इनटू द किचन्स। आई मीन आते हैं, बट ये है कि जब काम ना हो रहा हो यू शुड बी वेरी केयरफुल, बिकॉज वो बेयर फीट आएंगे अंदर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वहां भी हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, गैस स्टोव एंड सिलेंडर से बहुत ज्यादा हमें चांसेस होते हैं, लाइक किसी भी तरह का गैस सिलेंडर हो, किसी भी तरह का गैस स्टोव हो, लाइक केरोसिन स्टोव्स हैं, कैन्स हैं और बॉटल्स केरोसिन की किचन में रखी होती हैं, ठीक है। तो ये सब मेजर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। लाइक केरोसिन जो है वो आउट ऑफ द रीच होना चाहिए किड्स से, ठीक है, बिकॉज स्पिलिंग के चांसेस हैं, अगर वो कहीं गिरा हुआ है और कहीं भी आग लग सकती है, ठीक है। केरोसिन स्टोव्स को हैंडल करना चाहिए प्रॉपरली और कोई लीकिंग ना हो सो दैट द फायर हैजर्ड कैन बी अवॉइडेड। एंड फर्दर क्या है कि प्रेशर कुकर्स, और दूसरा अप्लायंस है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का भी आपको ख्याल रखना पड़ता है जब आप उस पर कुछ कुक कर रहे हैं, एंड देन द वाटर कंटेंट इज आल्सो नीडेड एंड द टाइमिंग ऑफ द प्रेशर कुकर, कुकिंग टाइम की आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज समटाइम्स आप रख के भूल गए, उसकी बहुत सारा प्रेशर हो गया, काफी सारी सीटियां बच चुकी थी, बट यू वर नॉट बी केयरफुल, एकदम से ब्लास्ट हो सकता है बिकॉज गैस पे वो चल रहा है और प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट हो गया है उसमें, ठीक है, और ड्राई हो गया था तो फिर वो ब्लास्ट ही होगा, एंड दैट कुड लीड टू मेजर एक्सीडेंट इन। गैस पे फूट सकता है, फिर आगे और फायर कैच हो सकती है, या कुछ और आसपास टूट सकता है, कुछ कांच के ग्लासेस एंड ऑल रखे होते हैं। मतलब यू आर ग्रोन अप, सो मैं डेली कहती हूँ कि आप इन चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा हॉट ऑयल वेसल्स, समटाइम्स क्या कि आप फ्राई कर रहे हैं, बच्चे पास में आते हैं और हॉट ऑयल तो हॉट ऑयल है ही, ऑब्वियसली अगर वो स्पिल हो जाएगा दैट कैन लीड टू अ मेजर स्किन पे, और जो ऑर्गन्स हैं आपके जहाँ पे भी वो स्पिल होगा इट एंटायरली कैन बर्न दैट ऑर्गन, क्योंकि बहुत हॉट ऑयल में जब फ्राइंग इज अ वेरी कॉमन इन इंडियन कुकिंग सिस्टम्स, तो बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में हम डाल के कुकिंग और फ्राइंग करते ही हैं, ठीक है। इस चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता, वेदर यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तो फ्राइंग तो होती ही है। सो ट्राई टू
बी केयरफुल व्हेन यू आर फ्राइंग, इन केस ऑफ द ओल्ड एंड इन केस ऑफ द चिल्ड्रन तो मस्ट है, ठीक है। एंड देन हॉट बॉइलिंग वाटर, समटाइम्स हम बॉयल करते हैं वाटर, सर्दियों में पानी पीना है, या समटाइम्स गीजर खराब हो गया, बहुत सा पतीला हम भर के पानी का गैस पे गर्म करके लेके जा रहे हैं, देन ऑल्सो अगर उसको लेके जाना है वॉशरूम तक, मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, होता नहीं है इफ यू आर केयरफुल, बट इफ यू आर नॉट केयरफुल तो मेजर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बर्निंग के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। दूसरा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं लाइक मिक्सर्स, ग्राइंडर्स, अगर आप उनको इंटेलिजेंटली या अच्छे से ध्यान से आप नहीं उनको यूज करेंगे, देन ऑल्सो दे कैन ऑल्सो लीड टू, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, ज्यादा कर दिया जल जाएगा, फायर कैन ऑल्सो बी टेकन, अगर आपको उसको वैसे ब्लेड को हाथ लग गया, कटिंग है, मतलब कुछ भी किसी भी तरह के इंसिडेंसेस ऐसे अप्लायंसेस के साथ एसोसिएटेड हैं ही हैं। I mean, there are also, we use these things for the benefit or for the saving of the time, ठीक है, benefit uses इनकी positive हैं, but negative or harmful effects are always there, but if you are not alert, if you are doing it alert, with alert mind, with careful working, then कुछ नहीं होता है फिर, ठीक है, don't be so negative, but you should always keep in mind कि इन चीज़ों के साथ ये सब चेंजेस हैं, जुड़ी हैं। दूसरा फिर नाइफ्स, नाइफ इज सच अ स्मॉल एप्लायंस व्हिच इज यूज्ड इन आवर किचन, बट इट कैन लीड टू, लाइक नीचे गिरा हुआ है, किसी ने हाथ लगा लिया, बहुत तेज तीखा था नाइफ, एंड किसी ने हाथ लगा लिया बच्चों के, और हमारे तरफ से भी हमारे भी हाथ कट सकते हैं, ठीक है, तो नाइफ इज ऑल्सो प्लेस्ड केयरफुली, ठीक है, एंड व्हेन इट इज यूज्ड वेरी केयरफुली। सो इलेक्ट्रिकल नाइव्स भी आते हैं आजकल, जो हम मैनेसिंग के लिए और कटिंग के लिए, कटिंग चॉपिंग के लिए भी करते हैं, देन ऑल्सो ब्लेंडर्स, उनके आगे भी ब्लेड्स लगे होते हैं, देन ऑल्सो मिक्सीज हैं, उनके जग्स के बीच में भी, इवन मिक्सी का क्या होता है कि जब हम वॉश करते हैं बीच में हाथ डाल के थोड़ा सा भी अगर किसी से स्क्रबर से भी हम करते हैं, लाइक देन ऑल्सो यू शुड बी, बिकॉज अंदर ब्लेड्स हैं, दे आर द नाइफ ब्लेड्स, तीखे तो है ही हैं, मतलब छोटी छोटी चीजों का आपको यू हैव टू बी केयरफुल while working in the kitchen. तो स्टील किचन काउंटर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो दी डेंजरस, ठीक है, क्योंकि मेटल है, ओपन ड्रॉर्स एंड कपबोर्ड्स कैन ऑल्सो कॉज इंजरी टू हेड और टिप, या फिर आप फॉल कर सकते हैं, या आपके ऊपर फॉल कर सकते हैं, या आप बंद करते हुए चोट लगवा सकते हैं। अगला है स्टेयर केसेस अगेन, ठीक है, मेक श्योर द हाइट ऑफ द स्टेप इज यूनिफॉर्म, सबसे बड़ी बात है कि स्टेयर केसेस में हमें मटेरियल का ख्याल रखना है, उनकी स्टेप्स की हाइट का ख्याल रखना है, और स्टेप्स की ब्रेड्थ का भी ख्याल रखना है, नंबर ऑफ स्टेप्स का ख्याल रखना है, उनकी स्टीप का, व्हेनेवर वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस या फिर हम रेंट पे ले रहे हैं, सो चेक दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर फैमिली मेंबर्स नीड्स। सो उसके स्टेप्स का भी ख्याल रखना है, मटेरियल का भी ख्याल रखना है, जल्दी वेट तो नहीं होता है, कहीं आसपास से पानी तो नहीं स्टेयर्स के ऊपर गिरता, लाइक समटाइम्स क्या कि सब कुछ ठीक है, staircases की लेंथ एंड ऑल एवरीथिंग, लेंथ, विड्थ और नंबर ऑफ और रैंप और स्टीपनेस उसकी सब ठीक थी, लेकिन क्या है कि जब कभी बारिश आती है तो वहां पे उसके ऊपर सीधा पानी पड़ता है, और अगर हम बाहर से आ रहे हैं, बाहर से आते ही आप सुखा नहीं सकते हैं, आपको घर के अंदर जाना है स्टेयर्स पे जाके, ठीक है, तो फिर अगर गीली हो जाती है वो जल्दी जल्दी, तो उससे क्या होता है कि आपको उससे दिक्कत आ सकती है, और स्लिपरी होने की वजह से आपको गिर सकते हैं, ऑब्वियसली कोई भी गिर सकता है, और उससे बच्चे भी, बड़े भी, और खुद आप भी, ठीक है, और इस तरह की चीजों का ख्याल रखिए कि जब कंस्ट्रक्शन है तो ऐसी सी चीजें ना हो आसपास। और नेक्स्ट आ जाता है आपकी स्टोरेज प्लेसेस, क्या है कि रूम्स एंड अदर एरियाज विच आर यूज्ड फॉर द स्टोरेज आर आल्सो द एक्सीडेंट प्रोन, ठीक है, बाकी रूम्स हैं या स्टोरेज रूम्स हैं, स्टोरेज प्लेसेस हैं, ठीक है, they need not to be so if plan or use well, obviously that I'm already telling you, if you are alert then nothing can happen, but if you are not alert then anything can happen. As far as possible keep storage facilities within easy reach. I mean ऐसा नहीं है कि कई बार समटाइम्स ना हम स्टोरेज फैसिलिटीज कैसे रखते हैं, बहुत ऊपर रख देते हैं, एंड देन हमें खुद को ही ना वन स्टूल पे चढ़ के एंड देन वी हैव टू रीच टू दैट प्लेसेस, समटाइम्स उसी से ही हमारी गिरने के चांसेस होते हैं, और बहुत मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, फीमेल्स के खासकर होते हैं इंडियन सिनारियो में, वो ऊपर पर छतियां सी बना के उसके ऊपर बड़े बड़े से स्टोरेज बॉक्सेस रख देती हैं, एंड जब उसके ऊपर क्लाइम करना होता है, एक स्टूल है या एक लैडर है, उसके ऊपर चढ़ेंगी, फिर लटकेंगी, उससे भी बहुत सारी चीज भी ऊपर गिरती है और खुद भी ऊपर गिरते हैं, आई मीन एनीबॉडी कैन, ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन इन इंडियन सिनेरियो, इन इंडियन हाउसेस, ओके, एंड देन एनवायरमेंटल सैनिटेशन एंड सेफ्टी का कैसे ख्याल रखना है, कहते हैं जब आप स्टोर करते हैं ना अपनी चीजें,
सो ऐसी चीज़ें जो नीचे रखी जा सकती हैं, तो अपने स्टोरेज हाउसेस आप नीचे बनाएं, सो दैट आप बड़ी इजीली कर सकते हैं उन पे काम, और बड़ी इजीली, वो ट्रबलसम नहीं होगा इतना, ठीक है। एंड दूसरा, आपको अपनी एलिवेटर्स एंड लिफ्ट्स का ख्याल रखना है। लिफ्ट्स आर बिकमिंग वेरी, आजकल जैसे बहुत ही कॉमन है। एंड आपको जो ऑल इंडिया लिफ्ट रेगुलेशंस एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली ही सारी बनानी पड़ेंगी। उसमें भी सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, वहाँ पे भी फ़ोन कॉल की प्रोविजन होना चाहिए, वहाँ पे नंबर लिखा होना चाहिए कि अगर आप फंस जाते हैं, रुक जाते हैं, देन ऑल्सो। और वेंटिलेशन का भी ख्याल हो पूरा, कि अगर कोई फंस जाती है, रुक जाती है समटाइम्स, तो इमरजेंसी लाइट हो, ये नहीं कि सब कुछ चला गया, लाइट चली गई लिफ्ट भी बंद होगी, नो। इसका एक प्रोविजन होना चाहिए कि एटलीस्ट जब लाइट इन बिटवीन चली जाती है, लिफ्ट वाज रनिंग अराउंड और गोइंग अप और गोइंग डाउन, सो दैट इट शुड रीच एट वन फ्लोर, वहां पे जाके उसके डोर्स ओपन होने का एक प्रोविजन होना चाहिए, इस तरह से बननी चाहिए। और उसके अंदर एक लाइटिंग सिस्टम भी होना चाहिए, एग्जॉस्ट फैन लगा होना चाहिए, विच शुड नॉट क्लोज विद द गॉन लाइटिंग सिस्टम्स, ठीक है। तो उसके अंदर नंबर लिखे होने चाहिए, और आपके पास भी नंबर होना चाहिए जिस पे आप कॉल कर सकें। और सिक्योरिटी पर्सन आर ऑलवेज देयर, ऑलवेज शुड बी देयर, जो आपको ख्याल रख सके, जो इजीली उसकी रिपेयर के लिए आ पाए लिफ्ट की। सो एक्टिविटीज दैट हैव पोटेंशियल फॉर एक्सीडेंट्स, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल होता है एक्सीडेंट्स का? लाइक पार्किंग आर व्हीकल, ठीक है। हम क्या करते हैं कि समटाइम्स हम पार्क करते हैं एंड कीज और इग्निशन ऑन करते हैं, गियर पे डालते हैं, और डेंजरसली विद द यंग चिल्ड्रन अराउंड, हम फटाफट देखते नहीं है, वी जस्ट गो एंड जो, या हम आके पार्क कर रहे हैं या हम पार्क गाड़ी को लेके जा रहे हैं, एंड हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि आसपास बच्चे खेल रहे थे। इग्निशन ऑन करते हैं, समटाइम्स पहले आप बैठिए, फिर जस्ट सी अराउंड, ओनली देन यू कैन स्टार्ट। अदरवाइज क्या है कि इग्निशन ऑन करेंगे, गियर डाला, फिर उसके बाद कंट्रोल करना मुश्किल है, बिकॉज सामने एक बच्चा आ गया या जो भी। या समटाइम्स क्या है कि आप, यू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड बच्चे खेल रहे थे, आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ऑब्वियसली व्हेन यू एंटर इनटू योर हाउस सराउंडिंग्स, या हाउस के आसपास पार्किंग एरिया में, इवन इन द ऑफिस पार्किंग एरिया, बट छोटे बच्चे नहीं, बड़े भी हो सकते हैं, ओल्ड भी हो सकते हैं, वो चलते हुए नहीं ध्यान दे रहे हैं, बट यू शुड बी वेरी अलर्ट वेन एवर यू आर ड्राइविंग कार, वेन एवर यू आर पार्किंग कार, इवन इन द house surroundings, or in the office parking, or in the market parking, or in the malls, and all, because humans are everywhere, and any human can come at any time in plus is in any place. So sometimes क्या है, पार्किंग में, मॉल्स में या बड़ी जगहों में तो चलो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, दे ऑलवेज चेक, बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट अराउंड योर हाउसेज, लाइक बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं या ओल्ड पर्सन वॉक के लिए जा रहे हैं, ठीक है, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज यू आर अलर्ट, यू आर अडल्ट, यू आर यंग, सो आपको उन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। सो सबसे पहले जस्ट चेक आउट योर सराउंडिंग्स, ओनली देन यू कैन स्टार्ट, एंड देन स्टार्ट विद वेरी स्लो। ओके, क्लच गियर्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बैकिंग योर कार इन योर होम यार्ड, ये भी बहुत बड़ी बात है। फ्रंट पे तो चलो आपको नजर आता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू आर बैकिंग योर कार। आजकल बहुत कारों में तो कैमराज एंड ऑल वो फैसिलिटीज हैं, यू कैन टेक केयर, बट समटाइम्स जिस कार में नहीं है, then you have to be very careful, because at the home surroundings too, like ऑफिस या मॉल्स में तो स्टिल बच्चों के होने के चांसेस है, किसी के भी होने के चांसेस नहीं होते, बट स्पेसिफिकली इन होम एरिया, आपके घरों के आसपास जो होते हैं ना, बच्चों के, ओल्ड पर्सन के, या डॉग्स के, कैट्स के, ऐसी सी चीज़ों के होने के चांसेस बहुत होते हैं, सो दैट एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स टूवर्ड्स एनी लिविंग ह्यूमन बीइंग और एनी लिविंग एनिमल को अवॉइड किया जाए, देन यू कैन टेक केयर व्हाइल बैकिंग योर कार। फ्रंट पे तो चलो आपको नजर आता है, बट बी केयरफुल, बी मोर अलर्ट टूवर्ड्स व्हेन यू आर बैकिंग योर कार इन योर होम यार्ड और समवेयर, ठीक है। डीप फ्राइंग इन द किचन, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, बच्चों से स्पेसिफिकली, और खुद को भी। समटाइम्स क्या है कि हम भी डीप फ्राई कर रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग ऑन अ फोन, समटाइम्स यार कोई साथ में खड़ा उससे बात कर रहे हैं, हम लोग भी बहुत अलर्ट नहीं रहते हैं, देन ऑल्सो, एंड इन स्पेसिफिकली इन केस ऑफ द चिल्ड्रन, तो आपको रहना ही पड़ेगा, ठीक है। प्लेइंग विद द फायर क्रैकर्स, जब पटाखे चलाते हैं इन द फेस्टिवल डेज, दिस शुड ऑल्सो बी टेकन केयर। फायर क्रैकर्स पे भी आग का है, साड़ियाँ, दुपट्टे, जो भी आपने पहना हुआ है, जो भी आपका इंडियन सिनेरियो में, या कैसा भी आपका अकॉर्डिंग टू योर रीजन, आपका कैसी ड्रेसिंग अप सेंस है, तो आप लोग हमेशा से दिवाली के दिनों में देखिए, सबसे मेजर जो फायर क्रैकिंग होती है, वहाँ पे आपको हमेशा गाइड किया जाता है टीवी में एड्स देखे एंड ऑल के, आपके जो क्लोथ्स हैं वो थोड़े कॉटन के होने चाहिए, ठीक है, और सिल्की या फिर नायलॉन क्लोथ्स ना पहुंचे, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर कुछ चींटा या कोई चिंगारी गिरती भी है,
वो फायर इतनी जल्दी नहीं पकड़ती जैसे कि आपके पॉलिएस्टर या फिर नायलॉन के क्लोथ्स पकड़ते हैं। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन वाइल प्लेइंग विद द फायर क्रैकर्स। और जब बच्चे फायर क्रैकिंग कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग विद द फायर क्रैकर्स, सो यू एवरी अडल्ट पर्सन और बड़े लोगों का साथ में रहना बहुत जरूरी है। डोंट लीव योर किड्स विद द फायर क्रैकर्स दैट दे आर प्लेइंग देयर एट देयर ओन, नो। ठीक है, बिग नो फॉर दिस। कीपिंग द बेडरूम वार्म व्हेन इट इज वेरी कोल्ड, पर्टिकुलरली जब चारकोल बर्न करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड का समटाइम्स क्या होता है कि हम अंगीठी बाल लेते हैं, चारकोल बीच में बालते हैं, जलाते हैं ताकि टू कीप द वार्म इन द विंटर्स, हम सब कुछ क्लोज कर लेते हैं। सब कुछ क्लोज मत करिए, एटलीस्ट वन विंडो शुड बी ओपन्ड। वार्म हो जाएगा, थोड़ा सा बाहर जाती रहेगी, बिकॉज वो चारकोल बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज वेरी डेंजरस फॉर इनहेलिंग, बट जब उसके अंदर ही बहुत ज्यादा हो जाएगी एंड आप सो जाएंगे, रात को सपोज चलाया एंड एवरीबडी इज स्लीपिंग, तो स्लीपिंग में ही लोग, पूरी पूरी फैमिली सोई ही रह जाती है, इतनी डेंजरस है। ठीक है, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल इन दीज केसेस। सो क्लीनिंग और हैंडलिंग फायर आर्म्स एट होम। जब आप कुछ भी आपके फायर आर्म्स हैं आपने घर में सेट किए हुए हैं, समटाइम्स क्या है कि वो यूज नहीं हुए हैं, यू दे वर एट देयर प्लेस, बट समटाइम्स क्या है कि आप उसको क्लीन करने के लिए निकालते हैं अनइंटेंशनली, वो ऑन हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, देन दे कैन कॉज मेजर एक्सीडेंट्स टू। सो जब उनको आप हैंडल कर रहे हैं, इवन फॉर द क्लीनिंग टू, ठीक है, देन ऑल्सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। यूजिंग ड्रिलिंग मशीन्स, ड्रिलिंग मशीन इज वेरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, वो इतना वॉल में करने के लिए है, अगर आपके हाथ पे या किसी और के हाथ पे या जरा सा आप अलर्ट नहीं है, आपने उसको टाइटली हैंड नहीं होल्ड किया हुआ था, देन ऑल्सो दैट कैन लीड टू अ वेरी मेजर एक्सीडेंट्स। ओके, इलेक्ट्रिकल शेवर्स हैं, सोल्डर्स हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, लाइक अगर आप घर में थोड़ा बहुत रखते हैं कि अपने आप भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल रिपेयर का काम कर लेते हैं, देन ऑल्सो दीज थिंग्स कैन बी dangerous if you are not working alert. Okay, then the simple almost daily course of ironing. Ironing क्या करते हैं हम, समटाइम्स हम सुबह सुबह उठते हैं, देन वी स्टार्ट आयरनिंग, और बहुत जल्दी जल्दी में करते हैं, उसको भी पानी वाले हाथ है, some स्टीम्ड वाली हैं, तो आयरनिंग टेबल पे आग पकड़ सकती है, कपड़े पे रख के भूल गए, बिकॉज hurriedly when you work, then also it will lead to some untoward incidences जो harmful हो सकते हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, घर के लिए। सो अगर अप्लायंसेस आप यूज करते हैं, सो कीप इन माइंड दैट थोड़ा सा उनकी तरफ अलर्ट रहिए जितनी भी जल्दी में है आप। फ्लाइंग काइट्स ऑन द रूफ टॉप, वो भी बहुत बड़ी चीज है, खेलते 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 काइट की तरफ ध्यान है और आप छत से नीचे, बच्चे या जो भी अगर केयरफुल नहीं है, देन ऑल्सो दे कैन फॉल फ्रॉम द रूफ। यूजिंग प्रेशर कुकर, ठीक है, प्रेशर कुकर्स का भी ऑलरेडी बताया कि वो प्रेशर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, प्रेशर इतना हो सकता है दैट कैन ब्लास्ट टू। कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड बेवरेज इन एक्सेसेस, ये भी बड़ी बहुत बैड हैबिट्स हैं, समटाइम्स यंग पर्सन्स में, समटाइम्स ओल्डर पर्सन्स में, अडल्ट्स में भी समटाइम्स होता है कि अल्कोहलिक बेवरेज दे लेते हैं, वेराइटी ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड दे टेक कंज्यूम इन सच अ bad limits so that they don't have the conscious alive, they are conscious alive, so that they cannot walk properly, they cannot talk properly, and they are not in their consciousness. So like they can go to the bathroom, they can fall there, either they can go to kitchen, they can do something, they can use electrical appliances in that condition, that can also be that can also lead to some major accidents, because that person is not conscious. And why, and don't let that person to use anything, just lie down and then let him become conscious, I mean reversible हो जाए उसकी वो जो situation है। So this is also one of the bad habit, मतलब किसी भी तरफ से, किसी भी तरह जगह से, in any form the accidents can happen if you are not alert. ओके, गिविंग बाथ टू बेबीज, ऐसे भी होता है कि बहुत छोटे बच्चे को जब जिसका हेड भी होल्ड नहीं होता है, देन यू हैव टू, आजकल बहुत मेजर बाथ टब्स आते हैं फॉर स्मॉलर किड्स, सो दैट यू कैन लाई एंड देन यू कैन मेक हिम बाथ। लेकिन थोड़े और जो बच्चे होल्ड कर लेते हैं हेड एंड बहुत स्मॉल हैं, दे कैन ऑल्सो स्लिप। सो जब बच्चों को बात देना है तो आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, स्पेसिफिकली ओल्डर जो लेडीज होती हैं, दे आर वेरी केयरफुल, एंड द यंग लेडीज जिनका फर्स्ट बेबी है, तो दे शुड हैव हेल्प फ्रॉम दोज फीमेल्स जो बता सकती हैं कि इस तरह से इसको हैंडल किया जाए। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग, रूटीन में क्या होता है कि सम
टाइम्स ना ईटिंग ऑल्सो, आपको पता है ईटिंग ऑल्सो बिकम्स एक्सीडेंट, फेटल हो जाते हैं समटाइम्स। है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, इसोफेगस में कोई बहुत ही, ट्रेकिया में कोई आपने जो भी आप खाते हैं वो सारा का सारा अंदर बिल्कुल जाके फंस जाता है एंड फ्यू सेकंड्स के लिए the person starts feeling suffocating and then breathlessness होनी शुरू हो जाती है। अगर आप उसको पैसेज को क्लियर नहीं करते हैं, बिकॉज विद एनी रीजन लाइक यू कैन गिव हिम टू ड्रिंक वाटर और समटाइम्स स्पून से या किसी भी तरीके से आप उसको अगर नहीं ठीक करते हैं, देन द पर्सन कैन बी, और अगर हो जाए ऐसा, सपोज थ्रोट में कुछ फंस जाए, देन व्हाट यू डू, समथिंग when the food or something sticks in the throat, then he cannot breathe quickly. So सबसे बड़ी बात है कि उसको पकड़ के खड़ा करो, स्टैंड उसके बिहाइंड एंड देन रैप करो अपनी आर्म उसके अराउंड, बिकॉज दैट पर्सन कैन नॉट स्टैंड प्रॉपर्ली, बिकॉज उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाती है, देन ही कैन नॉट स्टैंड प्रॉपर्ली। सो होल्ड with your hands while you are behind him, then put your first fist against his belly, ठीक है, एंड देन दोनों हाथों से पकड़ के उसके नेवल से आप उसके बिलो द रिब्स उसको प्रेस कीजिए उसकी बेली को, क्योंकि फिर क्या होगा कि एक जर्क मिलेगा फ्रॉम द स्टमक टू दी टुवर्ड्स द ट्रेकिया, तो जो भी फंसा है वो शायद उसके माउथ से स्टिक करके धक्के से, ठीक है, फोर्स से जो आप नीचे से प्रेशर करके जर्क्स दे रहे हैं उससे वो बाहर आ जाएगा। दिस इज दी गुड एक्सपेरिमेंट एंड ये कभी फेल नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, ऑलमोस्ट इट वर्क्स ऑलवेज। सो प्रैक्टिस डू, अगर इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि जो चोकिंग है, विक्टिम की चोकिंग है, वो 4 मिनट्स तक लास्ट करती है, उसके बाद उसको वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है, ठीक है, और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ओनली फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। अगर आप अलोन हैं, सपोज अब अगर कोई साथ में था देन तो ही और शी कैन डू दिस, अगर उसको पता है तो, बट अगर आप अलोन हैं एंड चोक हो गया फूड, देन थ्रो योर सेल्फ विद द फोर्सेस अलोंग द टेबल एज, अपने पेट को लेके ना एक अपना टेबल के साथ धक्का मारिए, या सिंक या शेल्फ जो आपके एब्डोमेन के बिल्कुल लेवल की हो, उसको आप जर्क दीजिए उसी तरह से। सो अपने रिप का वो वही चीज जैसे ही आके वापस आ जाएगी, रिपीट करो फिर से जब तक वो डिसलॉज ना हो जाए, ठीक है। डू नॉट बी अफ्रेड, मतलब अब ये कहा जाता है कि डोंट बी अफ्रेड, अगर कुछ ऐसा अनटूवर्ड हो भी जाता है तो ये क्योरेबल है अगर आप इस तरह की प्रैक्टिसेस ऑप्ट करें तो। समटाइम्स है कि स्लीपिंग टाइम, बेबीज कैन सफोकेट इन द बेड लाइनिंग्स, दे कैन नॉट पुश इट ऑफ। समटाइम्स क्या होता है कि छोटे बच्चे हैं बहुत, जिनको पता ही नहीं है कि मुंह से क्या, उनका मुंह ढका रह जाएगा और वो लॉज हो जाती हैं उनके ऊपर बिल्कुल आपकी जो शीट्स हैं ऊपर दी हुई हैं, उनको आता नहीं है करना, देन ऑल्सो यू शुड बी वेरी केयरफुल, लाइक वो उनको स्लिप करके रखिए, बार बार चेक करना होता है। like छोटे बच्चों को तो you have to be always careful when they are sleeping and when they are playing and when I mean always there, always okay, smoking especially in bed। समटाइम्स क्या है कि अगर स्मोक कर रहा है कुछ भी और बेड में स्मोक कर रहा है और स्मोक का थोड़ा भी, स्मोक का या सिगरेट का कुछ भी चिंगारी सी रह जाती है, दैट कैन आई मीन बर्न योर शीट, किस कपड़े की बनी हुई थी का, समटाइम्स अगर कॉटन की है तो थोड़ा शायद कम हार्मफुल हो, बट अगर नायलॉन की थी या सिल्क की थी, देन इट कैन लीड टू, it can take fire, it can catch fire and then it can lead to some major untoward incidents। And then things that are totally normal used at home and have a potential for accident। sometimes क्या है कि हम ऐसी चीजें भी हम घर में यूज करते हैं जो कि बहुत नॉर्मली यूज होती हैं, बट उनमें एक्सीडेंट का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लाइक इलेक्ट्रिकल आइटम्स। कौन कौन सी हर एक इलेक्ट्रिकल आइटम्स, हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, लाइक इमर्शन हीटर्स एज मेंशन्ड बिफोर, ओके, दीज कैन आल्सो बी, चाकू हैं, हेयर ड्रायर्स हैं, इग्निशन गैस स्टोव्स हैं, रॉड्स हैं, गीजर्स हैं, यू कैन नेम एनी ऑफ दी, बिकॉज जैसे ही किसी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, क्योंकि उसको आपको प्लग करना है, only then you can use because it is based on the electricity। तो हर कोई चीज वो एक्सीडेंट प्रोन है, चाहे आपको कितना भी कम लगे, ठीक है। एंड मेडिसिन एंड केमिकल्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, खासकर पेस्टिसाइड, समटाइम्स मेडिसिन एंड केमिकल्स, लाइक आप बात मानेंगे हेयर नेल रिमूवर्स जो होते हैं, ठीक है, नेल रिमूवर्स में क्या होता है कि एसीटोन होता है थोड़ी अमाउंट में, समटाइम्स एसीटोन भी यूज करते हैं, दिस इज ऑल्सो केमिकल। अगर वो कोई पी ले
अगर बच्चा है जिसको नहीं पता, उसने थोड़ा सा भी ड्रिंक कर लिया, देन ऑल्सो इट कुड बी वेरी हार्मफुल। और कोई भी एक मेडिसिन जो बच्चों की रीच में रखी हुई है, एंड यू डोंट नो बच्चों का हर चीज मुंह में डालने का होता है, या फिर बुजुर्ग हैं जिनको याद नहीं रहता, उनकी भी मेडिसिन का आपको ख्याल रखना चाहिए। आजकल बॉक्सेस आती है मंडे ट्यूसडे एंड ऑल, उसमें से वो खाएं, कई बार डबल ले लें, कई बार कम ले लें, ये सब चीजों का भी ख्याल रखना होता है। और समटाइम्स क्या है कि वो तो बुजुर्ग हैं, चलो भूल गए या जैसे भी, उनका भी ख्याल रखना है, बट समटाइम्स क्या है कि बच्चों को नहीं पता, वो खा सकते हैं, ज्यादा खा सकते हैं, कम खा सकते हैं, सो इस तरह से। और समटाइम्स क्या है कि हमने घरों में सम थोड़े अमाउंट में या ज्यादा अमाउंट में इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड रखे होते हैं, सपोज वी हैव अ गार्डनिंग एरिया, उसके लिए यूज करना होता है इंसेक्टिसाइड या किसी और तरह का पेस्टिसाइड, ऑब्वियसली दे आर एक्चुअली दी पॉइजनस, ये पॉइजन ही है। सो ह्यूमंस के लिए इन टच में अगर आप लेके आते हैं, देन ऑल्सो दे कैन हैव द वेरी फेटल, समटाइम बहुत ही फेटल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। दूसरा, शार्प टूल्स एंड नाइव्स, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। फायर आर्म्स एंड फायर क्रैकर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मोटर व्हीकल्स वाइल पार्किंग, वाइल ड्राइविंग, वाइल बैकिंग ऑफ द मोटर व्हीकल्स, देन कैन ऑल्सो बी टीवी टेलीविजन सेट्स। अब टेलीविजन को क्या है, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है। तो उसको एक ऐसी टीवी को भी आप एक ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे थोड़ी बहुत वेंटिलेशन हो, बिल्कुल वॉल के साथ जोड़ के नहीं, बिकॉज समटाइम्स क्या है कि टीवी बहुत ज्यादा देर तक चलेगा, मे बी वो कैच कर ले फायर, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ग्लू, ठीक है, ग्लू इज अ कॉमन मटेरियल यूज्ड एट होम, जो लिटिल चिल्ड्रन है दे कैन स्वेलो ऑल्सो, या टाइप ऑफ सुपर ग्लू, कैसी सी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ है। समटाइम्स वो अपने हाथ जोड़ लेते हैं, जैसे क्विक फिक्सेस हैं, उसके साथ हाथ जुड़ के स्किन को बहुत ही इंजरीज हो सकती हैं, बिकॉज वो जुड़ जाती हैं, देन आप उसको नहीं कर सकते, वो स्किन ही पील ऑफ होती है, ठीक है। एक म्यूकस अगर वो मुंह में ले गए तो म्यूकस मेम्ब्रेन जुड़ सकती है, देखिए अब वो बहुत अनटवर्ड इंसिडेंस हो सकता है, बिकॉज वो बहुत ही हैजर्डस है, खासकर बच्चों से दूर रखना चाहिए। प्लास्टिक बैग्स की बात करें अब अगर, तो दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन थिंग विच इज यूज्ड इन आवर होम्स, एंड हैजर्डस हो सकती है किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए खासकर, क्योंकि बड़े और यंग और ओल्ड भी इवन अलर्ट होंगे, बट द चिल्ड्रन जो हैं दे आर नॉट अलर्ट एंड दे आर नॉट नोन, एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं है, अगर वो चला जाता है दैट कैन मेक अस सफोकेटेड इनसाइड द बैग, समटाइम्स वो खेलते हैं, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स कैरी वार्निंग लिखी होती है हर जगह कि प्लास्टिक बैग्स को स्वेलो करना, खाना, या वो मुंह में कई बार ऐसे डाल लेते हैं। एक मैं और आपको बताती हूँ कि बैलून्स का होता है, बैलून्स को भी वो करते हैं जब फट जाते हैं एंड फिर से उसको मुंह में डाल डाल के करते हैं, वो भी एक प्लास्टिक है, वो स्टक कर जाती है बकल कैविटी के साथ, एंड दैट कैन लीड टू सम डेंजर्स लाइक ब्रेथलेसनेस है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ द फ्यू सेकेंड्स की सांस नहीं आ रहा है, एंड देन एनीथिंग कुड हैपन। रोप्स एंड स्ट्रिंग्स, ठीक है, उनके साथ खेलना भी बच्चों के लिए डेंजरस है, ठीक है ना। समटाइम्स क्या है कि ड्राइविंग हॉर्सेज लाइक छोटी चीज है, गिर सकते हैं, आई मीन इट एंटायरली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बच्चों की एज और आपको साथ में रहना, और कोई ना कोई अडल्ट साथ में हो जब ऐसी सी चीजें कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, लटक रहे हैं, झूले से लटक रहे हैं, तो गिर सकते हैं, झूल रहे हैं जोर से, उसकी स्पीड कैसी है, स्विंग कैसा है, आई मीन एवरीथिंग शुड बी, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। प्लांट्स एंड बेरीज, समटाइम्स आपके घरों में ना एक कोई ऑर्नामेंटल होते हैं, ठीक है, जैसे अब बेरीज हैं ऑफ द ब्यूटीफुल अमलतास आर वेरी हाईली पॉइजनस। अब अमलतास के प्लांट्स हर जगह लगे होते हैं, इस सीजन में बहुत ब्लूम करते हैं, पर उनके ऊपर एक बेरीज लगी होती हैं, एंड नो आई मीन नॉट एवरीबडी नोज दैट दीज बेरीज आर वेरी पॉइजनस, लाइक अगर आप मुंह में रख लेते हैं, बच्चों को नहीं पता, समटाइम्स अडल्ट को भी नहीं पता होता, यंग लोगों को भी नहीं पता होता, ठीक है ना, तो फिर क्या है कि वो सब फिर बहुत ही पॉइजनस हो जाती हैं, ठीक है, अगर च्यू कर ली जाए। तो इस तरह के और भी प्लांट्स हैं, सम किसी के लीव्स बहुत पॉइजनस होते हैं, हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं, गमलों में प्लांट्स लगाते हैं, सो समटाइम्स ऐसी चीजें चली जाती हैं, तो बच्चों को देखना चाहिए, कहना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स के ऊपर और भी कई तरह के वर्म्स एंड ऑल लगे होते हैं, वॉशिंग नहीं की होती है, एंड देन दे टेक इनसाइड, पॉइजनस भी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग काइंड ऑफ भी हो सकती है, सीरियस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पॉइजनिंग एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ विल डिस्कस द रोड एक्सीडेंट्स। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में हमेशा रोड्स पे ऑब्वियसली हर किसी को, एक तो जल्दी है, दूसरा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, तीसरा व्हीकल भी बहुत ज्यादा है, चौथा व्हीकल्स में ट्रक्स एंड ऑल, ये सारी कॉम्बिनेशन सब रोड पे हाई व्हीकल भी होते हैं, हैवी लोडेड वाले भी होते हैं, लो
वाले भी हो जाते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे कॉम्बिनेशन भी है कि आगे पीछे जाने का, ओवर स्पीडिंग करने का, और सबसे बड़ी बात है कि ओवरटेकिंग जब करते हैं एंड दैट टू इन अ फास्ट स्पीड, तो बहुत दिक्कत आती है। समटाइम्स व्हीकल पुअरली मेंटेन्ड है, ठीक है, उसकी पूरी सर्विसिंग नहीं हुई है एंड बीच में जाके कहीं रुकता है, बिल्कुल में बंद हो गया, इतनी स्पीड से जा रहा था, तो बाकियों को पीछे ब्रेक लगेगी एंड देन इट कैन लीड टू मेजर एक्सीडेंट्स लाइक टू व्हीलर्स के साथ, और लॉरीज हैं, पेडेस्ट्रियन और चिल्ड्रन साइड पे जा रहे थे, वो दूसरी तरफ रुक के जाके उनको हार्म कर सकता है। मतलब रोड पे तो किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है। ड्राइवर्स विद पुअर ड्राइविंग एबिलिटीज, ठीक है, उनके साथ क्या होगा कि अगर उनको अच्छे से ड्राइविंग नहीं आती थी, दे आर नॉट वेरी एक्सपीरियंस ड्राइवर्स, इनएडिक्वेट एक्सपीरियंसेस हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। मतलब अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन तो रोड पे जाके एक्सीडेंट करेगा या प्रोन तो करेगा ही ना लोगों को, या परेशान करेगा। ऑब्वियसली द ड्राइविंग गुड नहीं है। तो ओवरलोडिंग ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, समटाइम्स क्या है कि बहुत सारे ट्रक्स ऐसे होते हैं, वो इतना ओवरलोड करके चलते हैं, ना तो पीछे विजिबिलिटी होती है, ना उनको खुद पता चल रहा होता है, फिर रोड पे भी चार लोगों को परेशान कर रहे होते हैं, ऊपर ऊपर से एडिक्वेट स्पेस अवेलेबल नहीं होती है अगले ड्राइवर्स को, ठीक है। पुअर रोड सरफेस अगर हो, एडिक्वेट लाइटनिंग नहीं है, अनमार्क्ड ब्रेकर्स कोई मार्क्ड नहीं है, दिस कैन ऑल्सो लीड टू एक्सीडेंट्स एट द रोड्स। क्रॉसिंग विद नो ट्रैफिक लाइट्स है, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं खड़ा है, इनएडिक्वेट ड्रेन्ड एंड अनइंटेलिजेंट ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, वो अपनी कमिट, मतलब समटाइम्स द पुलिस पर्सन आर ट्रैफिक पुलिस पर्सन आर नॉट कमिटेड टू देयर ड्यूटीज, दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज वेल, दे आर नॉट गाइडिंग द पर्सन्स, एंड वहाँ पे साइंस नहीं है, कोई लाइट्स नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, ऊपर से ओवरलोडेड मटेरियल से ट्रक्स जा रहे हैं, ये सब चीजें दे कैन लीड टू। और स्पीड हो, ओवर स्पीडिंग जो है, इवन हर रोड पे चंडीगढ़ में या और बाकी जगह पे भी अगर आप देखिए, तो समटाइम्स अर्बन एरियाज में तो है ही, ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन की होती है हर रोड पे रोड की स्पीड। अगर आप उस रोड को स्पीड को ओवर क्रॉस करते हैं, फिर उसी स्पीड में आप आई मीन ओवरटेक भी करते हैं, दैट कैन आल्सो लीड टू, क्योंकि जैसे ही अगर आप स्पीड पे कम पे हैं, देन यू कैन कंट्रोल योर व्हीकल। अगर कोई अनटुवर्ड इंसिडेंस या सामने कुछ आ जाता है, देन यू कैन हैव योर ब्रेक, और अच्छे से कर सकते हैं, लगा सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं अपने व्हीकल को। बट अगर आप स्पीड पे हैं और ऐसा कुछ आगे आ जाता है और कुछ ना कुछ आपको कंट्रोल करना पड़ता है, तो वो आप नहीं कर पाएंगे कंट्रोल, क्योंकि ओवर स्पीडिंग में या ज्यादा स्पीड है तो उसमें कोई भी चीज पे, किसी भी चीज पे कंट्रोल करना, ब्रेक लगाना, अगर आप ब्रेक भी लगाते हैं, देन ऑल्सो यू विल हर्ट दी बैक साइड जितने भी आपके व्हीकल्स दे वर ट्रैवलिंग। द टाइप ऑफ द व्हीकल भी है, जैसे आप टू व्हीलर्स पे है तो आप प्लीज उस पे हेलमेट पहनिए और उसकी एक लिमिट पे ड्राइव कीजिए। अगर फोर व्हीलर है, दैट कैन ऑल्सो बी ड्रिवन एट सम स्पेसिफाइड स्पीड, एंड जो हैवी व्हीकल है, ट्रक्स एंड ऑल, वो भी, और दूसरा उस पे जो ओवरलोडिंग है वो भी ध्यान से की जाए, जो लोडिंग ऑफ द सामान है वो ओवरलोडिंग ना हो, ठीक है। और इररिस्पांसिबल एटीट्यूड टुवर्ड्स द ड्राइविंग, ठीक है। और जो ड्राइविंग है, दैट शुड बी रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड होना चाहिए बंदे का, हर किसी का, ड्राइवर का स्पेसिफिकली। एंड अगर इररिस्पॉन्सिबल है तो डेफिनेट है कि एक्सीडेंट हुआ ही होगा। तो नाइट ड्राइविंग में क्या है, आपकी लाइट्स और डिपर्स एंड अच्छे से ब्रेक लाइट्स एंड बैक वाली लाइट्स दोनों तरफ की बिल्कुल मेंटेन्ड होनी चाहिए, सो दैट जो आगे पीछे आने वाले हैं, और जब भी आप टर्न करेंगे तो इंडिकेटर्स शुड बी गिवन। तो इन चीज़ों का, और अल्कोहल एंड ड्राइविंग तो एवरीबडी नोज दैट दीज टू थिंग्स शुड नॉट बी मिक्स्ड, शुड नेवर बी मिक्स्ड, ठीक है। एंड रेलवे एंड एरोप्लेन्स के भी एक्सीडेंट्स, यू नो कि जब भी कोई पटड़ी पे होता है तो आपको जो रेलवे ट्रैक्स हैं, ठीक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा होते हैं एक्सीडेंट ऐसे। ट्रेन के साथ पैसेंजर्स डेली क्रॉस करते हैं, तो ऑब्वियसली प्लेन्स के जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनके साथ आपको हमेशा अलर्ट और हमेशा ट्रेन ट्रैक से दूर रहना चाहिए। जब आप किसी फाटक के पास पहुंचते हैं, जो ब्रेकर्स लगाए हुए होते हैं, सो डोंट क्रॉस जब तक ट्रेन क्रॉस नहीं कर जाती है। आप हमेशा उसका लाइटनिंग का, उसकी ग्रीन सिग्नल्स का और रेड सिग्नल्स का हमेशा ख्याल रखिए, बिकॉज द पर्सन्स आर always there who tell you that the train is coming, तो वो फाटक बंद कर दिए जाते हैं। sometimes the people they start moving from the, then also if it is closed here from here and there from the very small places, they just peep into that and then try to cross, and towards accidents इसीलिए हो जाते हैं because train जो fast आ रही है that won't be stopped, ठीक है, उसको इतना इजी नहीं होता स्टॉप करना, so it becomes very difficult to control those kind of accidents.
अच्छा, प्रिवेंशन अभी आपको करनी है, ठीक है। प्रिवेंशन में क्या है कि टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स आपको देखने पड़ेंगे, एंड देन यू कैन प्रिवेंट दोस, लाइक अवेयर करो पहले तो सिचुएशन को एंड पोटेंशियल फॉर एक्सीडेंट्स, तो पता चल जाएगा। अगर आप वैसे ही रीड कर रहे हो, सपोज अगर आपको पता चल गया कि यहाँ पे ऐसी चीज हो सकती है और आप अलर्ट हो गए उसके लिए, तो आप हाफ द बैटल तो वैसे ही वन कर ली, तो आप वैसे ही अवॉइड करोगे, एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, वहाँ पे पानी मत कीजिए, ठीक है। रेल गाड़ी आ रही है, वहाँ पे फाटक है, मत क्रॉस कीजिए। रोड पे आप जिस तरह से चल रहे हैं वहाँ पे केयरफुल ड्राइविंग कीजिए। तो उस तरह की नॉलेज होने से, मतलब जहाँ पे आप हैं उस तरह की चीजों की, और जहाँ पे आप हैं उस वहाँ पे कैसा सा एक्सीडेंट हो सकता है, इफ यू आर केयरफुल अबाउट योर सराउंडिंग्स, देन एनी काइंड ऑफ द एक्सीडेंट्स कुड बी अवॉइडेड, हो ही नहीं सकता, ठीक है। एंड डू नॉट ड्राइव आफ्टर टेकिंग ड्रिंकिंग, ठीक है। स्लीपिंग पिल्स और ट्रैंकुलाइजर्स लेके भी हमदर्दी, अगर कई बार आप क्या है कि सम मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब्ड बट वो उनका एक सेडेटिव इफेक्ट होता है, तो वो लेके भी आप कभी ड्राइव मत कीजिए, सो दैट वो आपके ब्रेन को थोड़ा सा स्लीपी कंडीशन में ले आती है, सो ऐसी चीजें भी मत कीजिए, ठीक है। और जो चिल्ड्रन है वो हमेशा बैक सीट पे बिठाइए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें करेंगे अगर आप केयरफुली करेंगे। फॉलो द रोड साइंस, ठीक है, डिलीजेंटली एंड कीप द विद इन द स्पीड लिमिट्स का ख्याल रखिए, ठीक है। एंड मेजर करिए, हमेशा मेजर जो रोड मेजर्स हैं उनको फॉलो कीजिए एंड रिड्यूस कीजिए इंसिडेंस ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक है। एंड हमेशा उन मेजर्स का, उन रूल्स का हमेशा ख्याल रखिए जो हमारे लॉ ने बनाए होते हैं, ठीक है ना। लॉ ने सम ट्रैफिक रूल्स बनाए हैं, हमेशा उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। और हमेशा जो है मोटर व्हीकल, टू व्हीकल, हमेशा जो लाइसेंसिंग है लाइसेंस अथॉरिटी से हमेशा टाइम पे, और उतनी एज के ही बच्चे को भी लाइसेंस दिलवाइए। समटाइम्स क्या है कि अंडर एज स्टूडेंट्स, बच्चे छोटे भी वो रोड पे चलाते हैं गाड़ियाँ, स्कूटर, टू व्हीलर समटाइम्स, क्योंकि यंग एज है, उनको भी आप गाइडिंग काउंसलिंग हमेशा कीजिए अगर वो चला रहे हैं, ठीक है ना। और विदाउट लाइसेंस कभी भी अपने बच्चों को अलाउ ना कीजिए, और बहुत ओल्ड लोग हो गए हैं उनको भी गाड़ी या ड्राइविंग से मना कीजिए। हमेशा एडल्ट्स या यंग पर्सन उनका ख्याल रखें, और लाइटिंग सिस्टम का ख्याल रखें, बिकॉज ओल्ड है, उनकी आई साइट भी थोड़ी वीक हो जाती है, सो नाइट ड्राइविंग भी उनकी अवॉइड करवाइए। आई मीन इन एवरी सिचुएशन इफ यू लर्न अबाउट दैट, अब हम ये करने लगे हैं और घर बनाने लगे हैं, यहाँ पे कैसा है, फैमिली की नीड्स के बेसिस पे, बच्चों की नीड्स के बेसिस पे, और कहीं जा रहे हैं तो कैसी ऐसी सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। ऑलवेज ऑलवेज मेजर about or think about the things which can happen when you start doing something, ठीक है। अगर आप उस चीज के बारे में अलर्टली सोचते हैं और करते हैं, then you can always always avoid accidents for any kind of untoward situation। आप अवॉइड कर सकते हैं एक घर में और बाहर और anywhere else, in the offices, surroundings, on road, while taking medicines, while taking anything else, I mean in every situation you can avoid. And with this I have finished this one chapter today. Tomorrow I'll start with some other next chapter, so I'll finish it here only. यदि कोई विद्यार्थी कुछ पूछना चाहता है तो उसका स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू सर। मैम कल का टॉपिक क्या रहेगा? कल का टॉपिक है हमारा, एक मिनट में अभी बताती हूँ आपको। कल का टॉपिक हमारा है इफ यू कैन लर्न डाइट इन डिजीज बेसिक प्रिंसिपल्स, और अगर खत्म हो जाएगा वो टाइमली, देन आई कैन स्टार्ट विद द डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। These two are related. Tomorrow we'll also start discussing with the diet only, because we have started discussing in the starting chapter about the disease, about the diet only. Then we have shifted to some other topics, because I go in a sequence ताकि आपका सीक्वेंस में चलता रहे, ठीक है जी। टुमारो मुझे लगता है फिर से वो डाइट वाले चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, इस DNHE 2। मैम वो DNHE 2 के ही पार्ट है ना? हाँ जी, वो DNHE 2 का पार्ट है। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके जी, ओके, थैंक यू।